Good evening, everyone. Welcome to Pre-Fight Podcast for UFC Fight Night. डोमिनिक रेयस वर्सेस जीरी प्रोहास्का. वैसे लास्ट टाइम जब डोमिनिक रेयस ने फाइट किया था दैट वाज UFC 253 एंड मैंने पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना आई थिंक UFC 254 से स्टार्ट किया था जस्ट नेक्स्ट पेपर व्यू. सो आई नेवर एक्चुअली गॉट टू स्पीक अबाउट डोमिनिक रेयस बट ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फाइटर्स इन लाइट हेवीवेट डिवीजन एंड इट्स नॉट लाइक मैं उसका लॉन्ग टाइम फैन था या कुछ बट there's a very clear reason where I started liking his style and I remember just before that let me recap उसका career अगर मैं just एक बार skim करूँ he was undefeated for a long time. He had almost we can say 10 fight win streak before he fought Volkan Ozdemir and मुझे याद है मैंने ये fight उसका first time live देखा था and मुझे लगा कि Volkan Ozdemir won the fight. A lot of people thought Volkan Ozdemir won the fight. And तभी मुझे ऐसा लगा था कि probably Reyes is like not a deserving guy, etc. But he got to fight for the title against John Jones after that. And going into the fight, I thought Dominic Reyes has no chance. John Jones is the greatest of all time, at least one of the greatest of all time. Top 1-2 में आ सकता है John Jones easily. And Reyes is just an athlete. Like वो उस fight में बार ऐसे बोल रहा था I'm an athlete. That's why I'll win or something like that. And also John Jones अगर वो मैच जीतता वो GSP का रिकॉर्ड स्ट्रीक एटलीस्ट ब्रेक करता ऐसा कुछ था. इट्स नॉट लाइक मैं जॉन जोन्स का फैन हूँ या बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ बट इट्स लाइक इट वाज जस्ट अ लॉजिकल थिंग यू नो समवन हुज दैट ग्रेट माइट नॉट लूज टू समवन लाइक रेस. एंड जब फाइट चालू हुआ इट लुक्ड लाइक रेस वाज ऑन पॉइंट. ही वाज मोर एग्रेसिव दैन आई थॉट ही वुड बी. And first round he won, second round he won. I was like wow nice. अभी शायद वो decline करेगा. Third round में slow down हुआ वो, but I thought he won the round very clearly. Third round, and that's when I thought oh my god he won 3 rounds. अभी John Jones has to finish the fight. And then it's not like John Jones was very actively looking for finishing the fight. He might have won the 4th and 5th round. मुझे फिर भी लग रहा था कि 4th round probably Reyes edge out कर लिया होगा. And then it was like when the decision was just about to be given मुझे लगा Dominic Reyes has won this and I was very much surprised. I was like wow we have got a new champion now. Slowly everything added up कि अच्छा this guy is undefeated and he defeated John Jones. It makes sense at least if you have to consider कि कौन John Jones को हरा सकता है. There is an undefeated guy who beat him. Makes a good storyline right. But the thing is decision जब आया तो स्प्लिट डिसीजन जॉन जोन्स को गया एंड आई बिलीव ऑलमोस्ट सब लोगों को लगा कि दिस इज जस्ट अ रॉबरी. डोमिनिक रेयस शुड हैव वन दैट फाइट इवन दो डोमिनिक रेयस का अनडिफीटेड स्ट्रीक वहाँ पे स्टॉप हुआ बट दैट वाज स्टिल अ स्टॉक राइज फॉर डोमिनिक रेयस. सबको लगा दिस गाय प्रूव दैट ही इज द बेस्ट. प्रॉब्ली अगर जॉन जोन्स के साथ रिमैच हुआ तो ही विल विन एंड एवरीथिंग समहाउ एडेड अप in his favor कि John Jones suddenly decides he will move up, he will go to heavyweight. उसने title vacate कर दिया and then UFC booked Dominic Reyes versus Jan Blachowicz for the light heavyweight title for UFC 253 and personally मुझे लगा कि after seeing that fight, at least John Jones का fight, there is nobody who will beat him in light heavyweight division. He'll be the champ for quite some long time. Maybe John Jones उसके बाद वापस नीचे आए कभी and उनका rematch हो सकता है. That's what I thought and that was my mindset going into that fight. Even if I had to predict then I would have said कि Dominic Reyes जीत सकता है. Most probably जीतेगा भी. But as we know Jan Blachowicz surprised everyone. He became the champ and not just that he showed that he is a championship material. He defeated Israel Adesanya recently, another one of my favorite fighters. And just to set some more context, like Dominic Reyes undefeated था, John Jones को हरा चुका था, लोगों के आइस में एटलीस्ट. एंड उस पर्सन को यान ब्लाहोविच ने नॉट जस्ट डिसीजन या किसी से हराया, उसने उसको स्टॉप किया इन राउंड 2. एंड वो अगर हम जनरली देखें डोमिनिक रेस के कैम्प के साइड से तो इट वॉज लाइक a very bad fight for him. Like कुछ भी अच्छा नहीं किया उसके लिए and जल्दी स्टॉप हो गया and ऐसा लग नहीं रहा था कि रेस बिल्कुल कम्पिटिटिव होने वाला था वो फाइट में.
ऐसा लग रहा था कि रेस उस दिन आया ही नहीं. इट लाइक रेस वॉज नॉट मेंटली प्रेजेंट है. इट्स नॉट लाइक पहली बार हो रहा है. बहुत टाइम ऐसा होता है कि फाइटर्स इवन दो सब कुछ पहले प्रिपरेशन में अच्छा जा रहा हो, फाइट डे के दिन या फाइट वीक में कुछ ऐसा हो जाता है, उसके बाद दे आर नॉट एबल टू फोकस. रेस केस में आई रिमेंबर उसने कैम्प चेंज किया था वो फाइट के लिए कम्प्लीटली, एंड मे बी दैट अफेक्टेड हिम, आई डोंट नो. एंड ही इज टॉकिंग अबाउट इट, ही इज सेइंग ही इज बैक. एंड इन जनरल एक फाइटर उस दिन ना शो अप करने का दो मतलब हो सकता है. या तो वो सीखेगा उससे एंड ही विल बिकम मच बेटर, ही विल कम बैक स्ट्रॉन्गर देन एवर एक्सेट्रा, जो ग्लोरीफाइड वे ऑफ डिस्क्राइबिंग होता है. या सेकेंडली वो फाइटर डिक्लाइन में जा रहा है एंड ही विल नॉट बी द सेम. एंड बोथ आर पॉसिबल. ये वाला फाइट डिटरमाइन करेगा कि वो कौन से मेंटल स्टेट में है. एंड इवन दो वो बेस्ट फॉर्म में आए, लाइक हिज ओपोनेंट जो है, ही इज़ अ वेरी वेरी टफ कंपिटिटर. यूरी प्रोहास्का के बारे में मैं अगर जस्ट समराइज करूं, उसको बहुत पहले UFC ने ऑफर दिया था ज्वाइन करने के लिए टू फाइट, बट उसको लग रहा था उस टाइम पे कि ही इज़ नॉट रेडी, एंड देन ही डिक्लाइंड द ऑफर. एंड रिसेंटली ही केम टू UFC फाइनली एज अ कंटेंडर. एंड अगर उसका जस्ट रिकॉर्ड देखोगे तो ही हैज़ अ वेरी वेरी गुड रिकॉर्ड. अभी तक उसके पास 3 लॉसेस हैं एंड 27 विन्स हैं, अ लॉट मोर विन्स दैन डोमिनिक रेस टू बी फ्रैंक. इनफैक्ट उसका रिसेंट ओपोनेंट्स वेर रियली गुड ओपोनेंट्स लाइक मोहम्मद लवाल, CB डॉलोवे. ये लोग एक्स UFC फाइटर्स थे जो राइजन में उसने फाइट किया था उनके साथ. एंड फाइनली जब वो UFC में आया, UFC ऑल्सो डिसाइडेड कि ही इज़ नॉट जस्ट एनी कंटेंडर, ऐसा फ्रेश प्रॉस्पेक्ट नहीं है वो. जस्ट लाइक जस्टिन गेजी में भी माइकल चैंडलर जो अभी रिसेंटली फाइट किया था, ही इज़ ऑल्सो समवन हु डिजर्व्स अ गुड कंटेंडर. एंड इंसिडेंटली UFC ने उसको वोल्कन उज़्देमिर ही दिया, जो फाइटर मैंने बोला था कि डोमिनिक रेस आइडियली हारना चाहिए था. इट्स अ फनी साइकिल बिकॉज डोमिनिक रेस आइडियली वोल्कन उज़्देमिर से हारना चाहिए था, बट डिसीजन डोमिनिक रेस को मिला. एंड इंसिडेंटली जब डोमिनिक रेस वर्सेस जॉन जोन्स हुआ, रेस को जीतना चाहिए था, बट जॉन जोन्स को डिसीजन मिला. एंड फनी थिंग, वोल्कन उज़्देमिर वर्सेस अलेक्जेंडर रैकिच, अभी करंटली नंबर 2 कंटेंडर है लाइट हेवीवेट में, वो फाइट हुआ था. एंड वहाँ पे राकिच को जीतना चाहिए था, बट उज़्देमिर को डिसीजन मिला. एंड समहाउ लाइक इट्स अ इनकम्प्लीट साइकिल, बट दोनों को कहीं ना कहीं विन मिला, कहीं लॉस मिला, समथिंग लाइक दैट. इसके बाद उज़्देमिर वर्सेस यूरी प्रोहास्का वाला फाइट हुआ था. एंड इन जनरल ऐसा था कि उज़्देमिर इज अ वेटरन, कभी नॉकआउट हुआ नहीं था उससे पहले, एंड वन ऑफ द बेटर फाइटर्स इन द डिवीजन. वी कैन से थोड़ा टफ कंटेंडर है कोई भी फ्रेश फाइटर के लिए. वो फाइट में यूरी प्रोहास्का वाज स्टिल द हाईलाइट, पूरा स्टार्ट से एंड तक ही वाज डूइंग अ लॉट ऑफ वियर्ड थिंग्स. 2-3 बार उसको लेकिन ऐसा लगा लाइक ही गॉट टैग्ड, but eventually whatever he was doing kind of worked, and he knocked out Volkan Ozdemir, which is a very surprising result. लोगों को लगा था कि probably वो डिसीजन जीत सकता है, but he won by a knockout, and that was a very good debut, probably one of the best debuts in UFC. Maybe Justin Gaethje versus Michael Johnson वो हो सकता है, या Michael Chandler versus Dan Hooker जो recently हुआ था. One of those might be slightly better, but all are in same level. Lot of Yuri Prohaska fans emerge हुए उस फाइट के बाद से. एंड इनफैक्ट ये वाले फाइट में लोगों को लग रहा है कि डोमिनिक रेस इज नॉट द सेम एनीमोर, एंड डोमिनिक रेस इज द अंडरडॉग. यूरी प्रोहास्का को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बेटिंग ऑड्स में भी वो फेवरेट है अभी. एंड समवेयर हाइप वैलिड है. प्रोहास्का का 27 फाइट्स जो बोला, 24 ऑफ देम आर नॉकआउट्स. एंड उसका बहुत अनप्रेडिक्टेबल स्टाइल है, बहुत क्या बोलते हैं, जेन मोड में है उसका स्टाइल. सबको एक इंट्रिग फैक्टर जाता है, जो यूजुअली कोई भी टॉप फाइटर हो, यू वांट टू सी सम काइंड ऑफ एन इंट्रिग, समथिंग न्यू, एंड यूरी प्रोहास्का काइंड ऑफ ऑफर्स दैट. सो आई अंडरस्टैंड दैट. अगर यूरी प्रोहास्का ये फाइट जीत जाता है तो देयर इज़ नो डाउट कि he'll be the next contender. Maybe Glover Teixeira के बाद he'll definitely be the next contender जो UFC देखेगा टाइटल फाइट के लिए. अलेक्जेंडर रैकिच भी है कन्वर्सेशन में, बट प्रोहास्का इज द हॉट टॉपिक राइट नाउ इन लाइट हेवीवेट डिवीजन.
बट इफ आई हैव टू प्रेडिक्ट दिस फाइट, आई स्टिल थिंक डोमिनिक रेस को लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं. एक लॉस इज नॉट एग्जैक्टली न्यू थिंग इन MMA. लॉसेस तो होते रहते हैं. एंड आई थिंक कि डोमिनिक रेस जैसे जॉन जोन्स के साथ फाइट किया था, इफ दैट डोमिनिक रेस शोज अप, he'll be able to control the fight from start. At least he will be able to get 3 rounds out of the 5, and he'll be able to fight smart. That's what I think. Prohaska might surprise us. He might knock Dominic Reyes out, and that would be a huge thing for a debutant. कि 2 fights में he got a title shot, and he should deserve it if he defeats Dominic Reyes, obviously. It's possible. मुझे लगता है कि it depends more on how which Dominic Reyes shows up. That will make a lot of difference on how the fight goes. I like Prohaska, and I think he is a good fighter. He has all the capability of beating Dominic Reyes. It's more of a personal choice यहाँ पे, personal bias बोल सकते हैं थोड़ा सा. I think ये fight is going to be really exciting. You should watch out for it, and it will be a great main event. Let's see how it plays out. Moving on, co-main event में we have Giga Chikadze versus Cub Swanson. वैसे गीगा इज लाइक वन ऑफ द प्रॉस्पेक्ट्स लोग बहुत हाइप कर रहे हैं, एंड इट इज़ वेरी वैलिड. अब तक इसने आई थिंक 5 विन्स लिया है UFC में, एंड ही हैज़ लाइक अ 7 फाइट विन स्ट्रीक. एंड बहुत अच्छा फाइटर है. उसका लास्ट फाइट आई रिमेंबर ही हैड TKO'd हिज ओपोनेंट इन राउंड 1, जेम्स क्रॉस सिमंस. And meanwhile, अगर इसका ओपोनेंट हम बोलें, he is one of the veterans of this game, Cub Swanson. बहुत बार बहुत अच्छे फाइटर्स को उसने हराया है. अनफॉर्चुनेटली फ्रैंकी एडगर, हॉलोवे, इनके साथ ही लॉस्ट. ब्रायन ऑर्टेगा ने उसको सबमिट किया था, एंड ही हैड अ बैड 4 फाइट लूजिंग स्ट्रीक एट वन पॉइंट. और उसके बाद से ही हैड डिफीटेड वन ऑफ द वेरी प्रॉमिसिंग प्रॉस्पेक्ट्स इन क्रॉन ग्रेसी. ग्रेसी हाउस होल्ड का अभी का कंटेंडर. एंड उसके बाद लास्ट वाला फाइट जो था, एक और फाइटर था डैनियल पिनेडा करके. ही हैड जस्ट डिफीटेड वन ऑफ द बर्न्स ब्रदर्स. गिलबर्ट बर्न्स का जो भाई है, हर्बर्ट बर्न्स, उसको उसने राउंड 2 में TKO किया था, एंड ही हैड सम हाइप बिहाइंड हिम, एंड कब स्वॉनसन जस्ट एंडेड हिम इन राउंड 2. बहुत ब्रूटल नॉकआउट था, एंड इट्स लाइक कब स्वॉनसन जीतेगा किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था. ही पुल्ड ऑफ अपसेट इन बोथ ऑफ दीज, क्रॉन ग्रेसी एज वेल एज डैनियल पिनेडा वाला फाइट. तो हियर इफ कब स्वॉनसन पुल्स ऑफ एन अपसेट, it will be shocking in a lot of terms, but I wouldn't be surprised because Cub Swanson has always looked really good. In fact, I would suggest, अगर आप लोगों ने अब तक फाइट नहीं देखा है, there is a fight called Do Ho Choi, Korean Superboy, उसका निकनेम जो है, versus Cub Swanson, one of the best fights in UFC. For sure, like you'll not regret it. You'll love the fight for sure, 100%. Cub Swanson can get it done for this prediction अगर मैं दूँ तो, but Giga has that hype and the correct stage जहाँ पे हम बोलते हैं people reach a prime. Obviously age advantage है, 5 years younger है Giga Chikadze, as well as skill wise I think slightly वो better है. तो Swanson might lose a decision is what I'm thinking, but anything is possible. I wouldn't be surprised अगर Swanson pulls it off. Let's see. इसके अलावा we have another really interesting fight. Ion Cutelaba is really fun to watch. Last time मुझे याद है UFC 254 वाला जब हमने फर्स्ट टाइम किया था, तो Magomed Ankalaev versus Ion Cutelaba का मैंने डिस्कस किया था, and I predicted him to win that fight, but he got brutally knocked out. And it's like it's always interesting to see, या तो वो नॉकआउट हो जाता है, हार जाता है, या फिर वो ओपोनेंट्स को बहुत अच्छे से हरा देता है. ही इज़ ऑलवेज अ फन फाइटर टू वॉच अब तक के लिए. एंड उसका जो ओपोनेंट है, ही हैज़ अ 4 फाइट विन स्ट्रीक एंड 2 विन्स इन UFC बेसिकली. इज़ लुकिंग लाइक अ गुड फाइटर. मैंने उसका लास्ट फाइट शायद देखा था, एंड ही हैड वन डोमिनेंट डिसीजन. इट्स वेरी इवन ऑफ अ फाइट अगर मैं बोलूँ तो. इयॉन क्यूटेलाबा इज़ अ गुड स्ट्राइकर, एंड डस्टिन जेकोबी, इट विल बी लाइक हिज बिगेस्ट फाइट टिल नाउ. अगर वो इसको हरा देता है तो दैट वुड बी द बिगेस्ट नेम इन हिज resume.
and meanwhile Ion Cutelaba is looking to bounce back in the division. उसका रैंकिंग अगर मैं क्विकली ऐसे चेक करूँ, ही इज़ नॉट रैंक्ड राइट नाउ. लास्ट टाइम आई थिंक वो 14-15 या टॉप 10 to 15 के बीच में आ रहा था. सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कैसे जाता है फाइट. अपार्ट फ्रॉम दिस एक और फाइट है शॉन स्ट्रिकलैंड वर्सेस क्रिस्टोफ जॉर्को. I don't know much about these two fighters, so I wouldn't predict much. But Sean Strickland is one of those Kevin Holland type का fighter. So he likes to trash talk, and that's fun. That's what's interesting about him. And he fights well. उसका record भी काफ़ी अच्छा जा रहा है. अभी 3 fight win streak में है. And in general he is having a win record. The losses in his card अगर हम check करें तो he has lost to Usman, Ponzinibbio, all good names. So would be interesting to see how he shows up. But the fight I'm most excited for, apart from the main event, is Merab Dvalishvili versus Cody Stamann. Merab Dvalishvili is one of my favorite fighters in bantamweight. In general मुझे cardio based fighters and scramblers बहुत पसंद है. For example like Tony Ferguson, Max Holloway, cardio के लिए, and scramblers like Colby Covington, चार्ल्स ओलिवेरा बोल सकते हैं, and a lot more. बहुत अच्छे scramblers हैं UFC में. And one of them, like if I have to say, Merab Dvalishvili is like the perfect combination for bantamweight division. उसका record है अब तक highest takedowns का, not just in bantamweight I think total भी, but not just takedowns, the most number of takedowns per round का भी उसका record है. And he is really cardio extensive fighter. बहुत सारे takedowns लेता है and कभी थकता नहीं है. Even though उसका striking उतना match नहीं करता अभी के लिए, still the amount of dedication and effort he puts into his wrestling is really impressive, and that's what is his highlight we can say. उसके अलावा he is also training with the champ Aljamain Sterling. दोनों teammates हैं and it clearly rubs off on each other. दोनों का wrestling बहुत improve हो रहा है overall. Although Aljamain didn't have a really good performance last time, but you can see कि he has those fundamentals really well implemented. And Dvalishvili अब तक UFC में he has like उसका first loss जो debut में था was against Frankie Saenz. उसके बाद रिकी साइमन के साथ almost जीत रहा था, and then last minute में it was like he got submitted literally last second of the fight. अगर तुम लोग देखोगे you will find round 3 5 minutes हो चुका है और उसके बाद he got submitted like that. उसके बाद से he was like he is on 5 fight win streak, which is really impressive. Meanwhile उसका जो opponent है उसका last fight he lost, and in general उसका अगर loss देखें तो he has lost to Sterling, Song Yadong के साथ majority draw था. Brian Kelleher fight मैंने देखा था, it was really good. He is good striker. उसका striking is what would make this fight more competitive. Wrestling wise I think Dvalishvili will be able to take him down. Sterling वाला fight में भी Sterling was able to ultimately take him down and submit him. दोनों बहुत अच्छे fighters हैं, दोनों roughly 31 years old हैं, and it will be a fun fight. Bantamweight never disappoints, and these two people will definitely not disappoint, at least for me. I think lot of takedowns expect कर सकते हैं. Striking में maybe Stamann थोड़ा dominate कर सकता है, but Dvalishvili has also adjusted his striking such that match हो जाता है, वो hit कर पाता है. You can say खबीब ने जैसे गेजी के साथ strike किया था, he was still able to land a lot of shots ना. तो Dvalishvili का style is also more of suited for him. उसने खुद का striking खुद के ही style के साथ match किया है, which I love to watch. I would suggest you कि ये वाला fight miss मत करना. वैसे card will be starting roughly at 7:30 AM in the morning, and prelims अगर आपको देखना ही है तो it will be like too early, 4:30 start होने वाला है, but if you are interested and if you are available you can watch it. I think आज के लिए बस इतना ही. हम मिलेंगे नेक्स्ट फाइट कार्ड के लिए. अभी इट्स नॉट सो क्लियर बिकॉज सैंडेगन वर्सेस डिलिशा होने वाला था, बट probably Angela Hill versus Amanda Ribas is going to be the main event. That's all for today. Enjoy the fights. Bye bye.